And Diva, one more question: when their email IDs will get created? So most probably in 2 working days. Okay, still 2 working days, huh? Yep, sir. By Thursday, we'll get all the official IDs for sure. ठीक है. Okay, so let's start. So where were we last time? I was talking about what is Angular, correct? And why we should use Angular. Now it's about how, right? Let's see the how part now. So let me just share my screen. Let me know once you're able to see my screen. Okay, is my screen visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, as you all understand, I mean, as we discussed yesterday, I mean, day before yesterday, last session, that the modern days, nowadays, the full stack framework that we use is mean stack, merge stack, right? So I told you about mean or merge, that we have MongoDB, Express.js, Angular, Node, or React.js or Node, right? So now the main point is, uh, I mean, before, and I told you that we'll be starting with the Angular front end only, right? We'll be starting with the Angular only front end. So how you will install, Angular, how you will work with Angular? You need to install the framework first, correct? You have to install the framework first, right? So, let's start the Angular first, correct? As we discussed. So I go to site called Angular.io. It's their latest. It is the official site of Angular, correct? Everything you will find about Angular over here, the complete framework, correct? All the nitty-gritty, sample code, everything is here. Now, now, what we have to do is we need to start basically the installation of Angular framework. Now, have we discussed about what is Angular and why we should use it? Have we done that or not in last session? Or we only talked about No, sir. what is full stack framework? Huh? What is full stack development? Did we talk about what is Angular? No, sir. No, sir. So if I ask you what is Angular, so what is the definition that you can tell me? What is Angular, not Angular JS? You can take a reference from anywhere. In fact, Google also. Let me open in front of you only. So if I say what is Angular, correct? Not why. What is Angular? So what is the definition that you see in front of you? What do you mean by this? What is Angular? They say Angular is a platform. Angular is a platform and a framework for building single page client application using HTML and TypeScript. So what does that mean? Any idea? एक क्वेश्चन है
हाँ क्वेश्चन है कि हाँ सर, एंगुलर क्या ये है क्या, नहीं नहीं सर, ये तो पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं, मैं भी गूगल से ही खोज रहा हूँ अभी। ओके, तो एंगुलर सर बेसिकली ये, सर एक क्वेश्चन है पहले से, जो हम लोग एंगुलर सर स्टडी कर रहे हैं वो फ्रेमवर्क और जो हमने बूट स्ट्रैप स्टडी किया है, तो उसमें क्या क्या डिफरेंस है सर फ्रेमवर्क और ये फ्रेमवर्क लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, ये वो तो मतलब। मैं तुमसे पूछना चाह रहा था, तुम मुझसे पूछ रहे हो। आई हम्म वाज हम्म। अबाउट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। सर मैं जब आपके मतलब ये सेशन चालू होने से मैं पढ़ रहा था, मैं तो मुझे दिमाग में आया कि सर फ्रेमवर्क और ये बूट स्ट्रैप मतलब क्या डिफरेंस है। ओके ओके, तो एंगुलर, अच्छा ठीक है, पहले पहले हम एंगुलर पे आते हैं कि एंगुलर इज अ फ्रेमवर्क, इज अ फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग सिंगल पेज एप्लीकेशन, करेक्ट, क्लाइंट साइड सिंगल पेज एप्लीकेशन और क्लाइंट साइड बेस्ड एप्लीकेशन, करेक्ट। सो फ्रेमवर्क क्या है सबसे पहले? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी। योर लाइब्रेरी मींस लिमिटेड सेट ऑफ फीचर्स, limited set of features, that is a library, correct? Library is your limited set of feature और functionality, जैसे bootstrap है उसमें limited classes ही हैं या limited functionality है, उससे ज्यादा नहीं है, right? अब तुम्हारा jQuery है, have you heard about jQuery? jQuery also have the limited set of feature or functionality, correct? So library always have the limited set of feature or functionality. Library always have the limited set of feature or functionality. Team, you got my point or not? But framework, यस सर। का benefit क्या होता है? What is framework? Framework is the one which gives you framework is the one which gives you option, which has library. Apart from library, your framework have a design pattern, correct? Your framework have option to extend the functionality. Your framework can extend the given functionality, right? So framework is a big thing. Framework is a big thing. Library is a part of framework. Library means only set of functions or set of functionality. That's it. That is library. You got a point? सर एक बार और Library, फिर से रिपीट करेंगे। लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी उसके पास हाँ। लिमिटेड सेट ऑफ फीचर्स होंगे या फिर फंक्शंस होंगे, 100, 500, 1000 लिमिटेड फंक्शंस। लाइब्रेरी के ओके। पास लिमिटेड फंक्शंस होंगे, लेकिन फ्रेमवर्क के पास ऑप्शन क्या है कि फ्रेमवर्क के पास लाइब्रेरी होती है, प्लस लाइब्रेरी के ऊपर फ्रेमवर्क के पास डिजाइन पैटर्न्स होते हैं, करेक्ट? फ्रेमवर्क के पास सिंटेक्स सिमेंटिक्स होते हैं, फ्रेमवर्क के पास जो है आपकी लाइब्रेरी को एक्सटेंड करने के ऑप्शंस होते हैं कि आप और आगे कैसे एक्सटेंड कर सकते हो। तो एक्सटेंड लाइब्रेरी सर में तो उन्हीं फिक्स, की लाइव। लाइब्रेरी में तो होल्ड ऑन, लिसन टू मी फर्स्ट। लाइब्रेरी में तो आपके फिक्स फंक्शन को ऐसे ही कॉल करोगे, लेकिन फ्रेमवर्क में ऑप्शन क्या है, आप उनको एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सटेंड मतलब उनको आगे, उन फंक्शनलिटीज को और आगे एक्सटेंड कर सकते हो, अपनी खुद की फंक्शनलिटी बना सकते हो। क्लियर हुआ या नहीं? अपनी खुद की फंक्शनलिटी बना सकते हो, कस्टम फंक्शनलिटी बना सकते यस सर। हो, राइट? करेक्ट? Yes, sir. ओके, एनी क्वेश्चन Okay. रिगार्डिंग दैट? सर कस्टम फंक्शनलिटी का एग्जांपल बता दीजिए। कस्टम फंक्शनलिटी, अब तुम्हें, अब मैं बोलूंगा डायरेक्टिव तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा डायरेक्टिव क्या होते हैं। कस्टम फंक्शनलिटी मतलब जैसे अपनी खुद की फंक्शनलिटी बनाना। फॉर एग्जांपल jQuery में लेट्स से एक फंक्शन है एरे में डेटा पुश करने का, डॉट पुश, करेक्ट? अब तुम्हें अगर यस उस सर। फंक्शनलिटी को आगे एक्सटेंड करना है, ओवरराइड करना है, राइट, करेक्ट, तो वो तुम फ्रेमवर्क में कर सकते हो। फ्रेमवर्क गिव्स यू ऑप्शन टू चेंज द फंक्शनलिटी, आई शुड से नॉट चेंज, एक्सटेंड द फंक्शनलिटी, आगे उसी फंक्शनलिटी को और फंक्शनलिटी उसमें एक्सटेंड करना, बढ़ाना, करेक्ट? जैसे अभी वो एक फंक्शन कर पा रही है, अब वो दूसरी फंक्शन भी कर सकती है, या कस्टम फंक्शनलिटी बनाना, अपनी खुद की फंक्शनलिटी बनाना, ऐसे समझो, खुद की फंक्शनलिटी बनाना, राइट? फॉर एग्जांपल जैसे फंक्शन, हमारे पास फंक्शन नहीं है फर्स्ट लेटर कैपिटल करने का, फर्स्ट लेटर कैपिटल करने का, तो तुम खुद का फंक्शन बना के ऐसी फंक्शनलिटी लेके आ सकते हो।
जैसे हमारे पास फंक्शन नहीं है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कॉमा सेपरेटेड कॉन्केटिनेट करने का, कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उठा के उनके बीच में कॉमा लगा दे, ऐसी फंक्शनलिटी सपोज नहीं है हमारे पास लाइब्रेरी के अंदर। तो तुम जो फ्रेमवर्क के अंदर ऐसी अपनी कस्टम फंक्शनलिटी बना सकते हो। मेरी बात समझ में आई या नहीं? हाँ भाई सर। हाँ, अपनी खुद की फंक्शनलिटी बनाना, दैट इज कॉल्ड कस्टम फंक्शनलिटी। ओके यस सर। ओके। तो एंगुलर जो है बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, राइट, जिसमें हम सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाते हैं, जिसमें हम HTML टाइपस्क्रिप्ट यूज करते हैं। बट ये तो बड़ी बुकिश लैंग्वेज हो गई। बट अगर मैं एंगुलर को पूछूं, एंगुलर है क्या? बेसिकली ये फ्रेमवर्क है जो क्लाइंट साइड वर्क करता है, करेक्ट, जो क्लाइंट साइड बेस एप्लीकेशन बनाता है। अब क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट बेस एप्लीकेशन क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट बेस एप्लीकेशन? व्हाट इज क्लाइंट साइड? Sir, through which client can interact over web. No, what is client side? Client side rendering, client side base application, client side rendering application, क्या मतलब है उसका? एप्लीकेशन दैट इज व्यूड और जो क्लाइंट उसे जिसे देख सकता है उसे चेंज कर सकता है, ओनली क्लाइंट। नो। और कुछ, और कोई डेफिनेशन क्लाइंट साइड की? फ्रंट एंड वो क्लाइंट क्लाइंट साइड फ्रंट एंड ऑफ एप्लीकेशन। सर क्लाइंट साइड मतलब ये हुआ कि मतलब मोस्ट जो यूजर्स की नीड है, जो क्लाइंट की नीड है, वो उसको सब चीज़ें उसमें अवेलेबल हो, मतलब एज पर जो जैसा वो चाह रहा है टास्क परफॉर्म कराना, उसके बेसिस पे हम क्लाइंट साइड। हेलो। नहीं, तुम लोगों की डेफिनेशन गलत है। क्लाइंट साइड का मतलब क्लाइंट रिक्वायरमेंट नहीं, क्लाइंट साइड का मतलब ब्राउजर। तो जो एंगुलर एप्लीकेशन है वो आपकी ब्राउजर पर रेंडर होती है। ओके, एंगुलर एप्लीकेशन आपकी ब्राउजर पर रेंडर होती है। जो सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज होती हैं वो सर्वर पर कंपाइल होती हैं। जो जो क्लाइंट साइड एप्लीकेशन होती हैं वो ब्राउजर पे जो है कंपाइल होती है। कंपाइल बोलेंगे या बोलेंगे रन होती है? कंपाइल होती है। इन इजी लैंग्वेज यू कैन से कंपाइल होती है। सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज कौन सी होती हैं? एनी आइडिया अबाउट सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज? टीम, एनी आइडिया अबाउट सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज? अच्छा ठीक है, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी में बताता हूँ। सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज डेटा। जो सर्वर पे कंपाइल होती हैं, जैसे आपकी जावा, आपकी C#, आपकी PHP, करेक्ट, ये सर्वर पे कंपाइल होती हैं। क्यों सर्वर पे कंपाइल होती हैं? वाई दे कंपाइल ऑन सर्वर? इनमें तो हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। Sir, communication करवाता है between the front end, back end and database. Okay, you will get ready with the answer. I'm coming in just 30 seconds, huh? Just 30 seconds. Okay, be ready with the answer.
Okay, I'm back. So, is my voice audible? Yes, sir. Yeah. So Yes, sir. we were talking about the server side. So this Java, .NET, PHP, right? These are basically server side technologies. Okay. Why they are called server side technologies? Because we don't have, I mean, because browser does not understand this Java, PHP, and .NET. Basically, your browser does not understand your Java, .NET, and PHP. Ultimately, whatever web application you make, it has to come on the browser. Yes or no? आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो, कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाते हो, वो आपकी वो एप्लीकेशन आपकी इस पर आएगी ना, व्हाट यू कॉल इट, ब्राउजर पर रेंडर होगी या नहीं होगी? Okay. करेक्ट? Yes, sir. आपने फेसबुक बनाया, गूगल बनाया, यूट्यूब बनाया, वो आपके ब्राउजर पे चलता है ना? अब जैसे फेसबुक है, Yes. फेसबुक पीएचपी बना हुआ है, फेसबुक इज बिल्ड इन पीएचपी, बट आपका ब्राउजर तो पीएचपी नहीं समझता. योर क्रोम, योर इंटरनेट एक्सप्लोरर, राइट, दैट डज नॉट अंडरस्टैंड पीएचपी. ब्राउजर कैन अंडरस्टैंड व्हाट? ब्राउजर अंडरस्टैंड्स व्हाट? ब्राउजर क्या समझता है? So scripting language. Hello team, browser understands what? Can you count? Can you tell me? So Hello? scripting language. Server side language. नहीं नहीं Client side नहीं. language. Client side language. HTML, JavaScript, correct? CSS and CSS. XML. Your browser can understand these four things and not more than that. Browser को क्या .NET होता है, क्या Java होता है, क्या PHP होता है, क्या Angular है, right? क्या React है, क्या Vue.js है, browser को कुछ नहीं पता. Browser को सिर्फ और सिर्फ समझ में आता है your HTML, your CSS, your JavaScript and your XML. Okay? ब्राउजर कैन अंडरस्टैंड दिस ओनली. तो जो एप्लीकेशन जावा में, पीएचपी में या .NET में बनी होती हैं, these applications are called these applications are built in server side scripting language. मतलब C Sharp में, जावा में, PHP में, these are server side scripting language. अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्यों होती है? क्योंकि इनकी कंपाइलेशन ब्राउजर पर नहीं होती है. इनकी कंपाइलेशन के लिए हर बार कॉल जो है वो ब्राउजर पर जाती है, सॉरी, हर बार कॉल जो है सर्वर पे जाती है. जैसे हम जावा एप्लीकेशन को कहाँ इंस्टॉल करते हैं? लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप. ओके, वेयर वी इंस्टॉल दिस जावा एप्लीकेशन. जावा बेस्ड जो वेब एप्लीकेशन होती है उनको कहाँ, किस सर्वर पे इंस्टॉल करते हैं, कैसे सर्वर पे इंस्टॉल करते हैं, कौन से टाइप का सर्वर होता है? So टॉमकैट Tomcat पे अपाचे, करते हैं. है ना? Yes, sir. टॉमकैट पे ही क्यों करते हैं और किसी पे क्यों नहीं करते? So Tomcat उसी compilation जानता है और नहीं, और में एग्जैक्टली. नहीं होता compile. सो बिकॉज़ टॉमकैट अपाचे जो है वो जावा को कंपाइल करना जानता है. ओके, टॉमकैट अपाचे जो है वो जावा को कंपाइल करना जानता है. और कंपाइल करके क्या करता है? वो कंपाइल करने का क्या करता है? रन करता है. Sir, तो सर्वर जब तुम उसे लोकल पे चलाते हो तो कंपाइल करके क्या करता है? टाइम में रन करता है. उसको उसको रेंडर करता है HTML के अंदर. करेक्ट? उसको रेंडर करता है HTML के अंदर. बात समझ में आई? तुम्हारा .NET, जावा या PHP जो है वो सर्वर पे ही रन करती हैं, सर्वर पे ही कंपाइल होती हैं, और उसके बाद कंपाइल होने के बाद वो PHP कोड जो है या वो जावा कोड जो है या वो जो .NEट कोड है वो कन्वर्ट हो जाता है HTML के अंदर, HTML जावास्क्रिप्ट के अंदर. डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट? और वो जो yes, sir. रेंडर्ड कोड है, वो जो रेंडर्ड कोड है HTML और जावास्क्रिप्ट में, वो आता है क्लाइंट के ब्राउजर पर. वो क्लाइंट ब्राउजर पे लोड होता है. वो क्लाइंट ब्राउजर पर लोड होता है. समझे? क्लाइंट ब्राउजर पे लोड होता है. क्लियर हुआ इतना या नहीं? Yes, sir. ब्राउजर Yes, sir. थोड़ा लोकेट कर दीजिए.
ठीक है, तो ये तो हुआ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। समझ में आया सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में या सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज में? टीम, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, जल्दी बोलो। नो सर। सर ये एंड्रॉइड पे भी ऐसा ही होता होगा तो? नहीं मैं अभी एंड्रॉयड या iOS की बात नहीं कर रहा, मैं नहीं नहीं सिर्फ वेब नहीं की बात कर नहीं सर, ऐसे भी पूछ रहा हूँ बस, ऐसे ही मतलब जैसे रहा हूँ। नहीं आपने अभी हम एग्जांपल दिया टॉपिक वैसे। टॉपिक पर रहते हैं, टॉपिक पर रहते हैं। तो यू ठीक टेल है मी सर। फर्स्ट ऑफ सर ऑल क्लाइंट सर्वर साइड क्लाइंट का सर समझ में आया बताइए। नहीं है? आगे ओके, क्लाइंट को सर थोड़ा। क्लाइंट साइड में हम बता रहा हूँ, प्लीज वेट, हैव पेशेंस। क्लाइंट साइड का डिफरेंस क्या होता है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है? अच्छा कोई पहले कोई एक बताओ, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कोई एग्जांपल पता है? डू यू नो व्हाट इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग? अभी सर्वर साइड पता है तो क्लाइंट साइड बता सकते हो कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का क्या मतलब हुआ? यस सर। सर ब्राउजर में ही वो कंपाइल होती है। गुड। आपकी जो जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस या क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग फ्रेमवर्क मींस जो क्लाइंट के ब्राउजर पर ही जहां कंपाइलेशन होती है, या कंपाइलेशन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ रेंडरिंग होती है। सॉरी माय मिस्टेक, रेंडरिंग की जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ जो है वो रन करता है कोड। फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो रिएक्ट जेएस है या तुम्हारा जो एंगुलर जेएस है, राइट, सर्वर से कुछ भी रेंडर होके नहीं आता, सर्वर से पूरी की पूरी एप्लीकेशन आती है इन द फॉर्म ऑफ HTML एंड जावास्क्रिप्ट। क्यों? क्योंकि HTML एंड जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में ही वो सर्वर पे होस्टेड होता है। आपका एंगुलर रिएक्ट जेएस जो है, एंगुलर जो है, मैं एंगुलर की बात करता हूँ, रिएक्ट की नहीं, एंगुलर जो है वो सर्वर से ही जब क्लाइंट ब्राउजर पर आता है तो वो HTML एंड जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में ही होस्टेड होता है, और HTML जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में ही वो क्लाइंट के ब्राउजर पे लोड होता है। तो एंगुलर का जो कोड है वो कंपाइल नहीं होता है, वो रेंडर नहीं होता है, सॉरी, HTML जावास्क्रिप्ट में वो ऑलरेडी HTML जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में होता है, तो वो सिर्फ वहां से कॉल होता है और क्लाइंट ब्राउजर पे वो लोड हो जाता है। करेक्ट? तो यहाँ पर हमारा जो है कंपाइलेशन कॉन्सेप्ट कैंसिल हो जाता है, कंपाइलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली जो है HTML एंड जावास्क्रिप्ट का कोड ही सीधा ब्राउजर में आता है और पूरी की पूरी एप्लीकेशन आती है, कंप्लीट एप्लीकेशन, कंप्लीट कोड आता है। तो अब जब कंप्लीट एप्लीकेशन या कंप्लीट कोड आता है, सो नाउ इन द ब्राउजर देयर इज नो कॉल व्हिच विल गो टू सर्वर, पूरी एप्लीकेशन आपके ब्राउजर पर ही आ गई, ठीक है? और कोई भी अब सर्वर कॉल नहीं होगी, सर्वर साइड कॉल कोई नहीं होगी अपार्ट फ्रॉम API कॉल और डेटाबेस कॉल, कोई भी सर्वर कॉल नहीं होगी। तो इससे बेनिफिट क्या होगा? सर एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। एग्जीक्यूशन फास्ट होगा और सर आउटपुट जल्दी मिलेगा सर हमें। तो एक ही बात होगी ना, एग्जीक्यूशन फास्ट होगा, राइट? उससे इसका जो है एग्जीक्यूशन ऑपरेटिंग फास्ट होगा, सिस्टम का परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस हाँ, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, नेटवर्क कॉल नहीं होगा। एग्जीक्यूशन फास्ट का मतलब क्या हुआ? नेटवर्क कॉल नहीं होगी। नेटवर्क कॉल मतलब सर्वर पे कोई कॉल नहीं जाएगी, सर्वर पे कॉल नहीं जाएगी तो आपका डिले नहीं होगा, आपका सारा का सारा एप्लीकेशन ब्राउजर पर ही है, राइट? मेमोरी सर, यस सर। मेमोरी कम में इंगेज होगा मतलब। करेक्ट ना? सर्वर साइड कंपाइलेशन बच गई, देयर इज नो नीड फॉर द सर्वर साइड कंपाइलेशन। देखो, client side script is a program that process within the client browser, right? These kinds of scripts are small programs which are downloaded, compiled and run by the browser. JavaScript is important client side scripting language. JavaScript is not important client side scripting language. In fact, JavaScript is the only client side scripting language. Getting my point? यस सर। क्योंकि अगर कोई भी फ्रेमवर्क अगर बोलता है कि हाँ कि मैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग हूँ, करेक्ट, तो इसका मतलब वो जावास्क्रिप्ट में रिजल्ट दे रहा है और इसका कोई भी दूसरा मीनिंग नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। यस सर। तो अब क्लियर है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग? ओके, सर्वर साइड एक और पॉइंट, सर्वर साइड में हर बार जो है कॉल सर्वर को जाती है, क्यों? क्लाइंट उस कॉल को समझता ही नहीं है,
तुमने बटन क्लिक पे कुछ कोड लिखा है, अब वो कोड तुम्हारा PHP में या जावा में या डॉटनेट में है, C# में है, तो ब्राउजर तो उसको समझता ही नहीं है, तो ब्राउजर क्या करेगा, उसको भेजेगा सर्वर के पास, सर्वर पे जाएगा, वो C# जावा या PHP का कोड कंपाइल होगा, कंपाइल होके वो रेंडर होएगा HTML में या जावास्क्रिप्ट में, और फिर वापस ब्राउजर पे आएगा। तो कुछ भी एक्शन तुम परफॉर्म करोगे सर्वर साइड में, सर्वर साइड एप्लीकेशन में, तो वो सर्वर पे जाएगा कंपाइल होने के लिए। वेयर एज इन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम, हर चीज क्लाइंट के ब्राउजर में ही होती है और वहीं से एग्जीक्यूट कर जाती है, बिकॉज वो जावास्क्रिप्ट और HTML की फॉर्म में होती है। ब्राउजर ओनली अंडरस्टैंड HTML, जावास्क्रिप्ट, करेक्ट, XML एंड CSS। अभी तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। या गो अहेड। एनी क्वेश्चन टीम? हेलो हेलो सर, दिस इज अभिलाष। मैं सर थोड़ा लेट ज्वाइन किया था सर मैंने। ओके, नो प्रॉब्लम। कोई हेलो क्वेश्चन, कोई डाउट? सर। हाँ। हाँ सर, मैं डाउट था सर। सर एंगुलर इज व्हाट, मतलब ये एंगुलर इज फ्रेमवर्क ऑफ HTML CSS, और मतलब क्या है, मतलब एंगुलर समझ नहीं पाया सर मैं। वेयर वी यूज एंगुलर सर? एंगुलर इज अ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क बेसिकली, हम इसे फ्रंट एंड में यूज करते हैं। फ्रंट एंड मतलब अपनी वेब एप्लीकेशन या वेब डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। ये एक फ्रेमवर्क है, करेक्ट, which use basically your HTML and TypeScript। ओके HTML और का सर, इससे एक्सटेंडेड हम हम कह वन सकते हैं मिनट, कि ये फ्रेमवर्क है HTML का? नहीं HTML का फ्रेमवर्क नहीं है, ये फ्रेमवर्क है जिससे हम एप्लीकेशन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ TypeScript, HTML, राइट, HTML, ओके TypeScript, CSS, इनको यूज करके हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, क्लाइंट एप्लीकेशन बनाते हैं या वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? सर एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ HTML की लाइब्रेरी का मतलब कह सकते हैं ना कि ये एंगुलर है जो? नहीं, एक्सटेंडेड वर्जन नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड एक्सटेंडेड वर्जन, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अच्छा। कुछ भी उसके साथ ऐड मत करो, इट इज गोइंग टू बी कंफ्यूजिंग फॉर यू। सो ये आपका जो है सिंपल सा आपका एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम HTML, टाइपस्क्रिप्ट, अब टाइपस्क्रिप्ट क्या है, टाइपस्क्रिप्ट एक नई तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, आई विल टेल यू अबाउट इट आफ्टर दिस। सो ये HTML, टाइपस्क्रिप्ट, राइट, CSS, जावास्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर हम, करेक्ट, इन सबको यूज करके हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। तो ये एक फ्रेमवर्क है जो वेब एप्लीकेशन बनाने के काम आता है, फ्रंट एंड के लिए काम आता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए काम आता है। एंगुलर में आप बैक एंड डेवलपमेंट नहीं कर सकते, एंगुलर में आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट करो। क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? प्लीज टेल मी। यस सर, यस सर। यस सर, क्लियर है। ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज एंगुलर, तो क्लियर है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई वी शुड यूज एंगुलर। मार्केट में रिएक्ट जेएस भी है, व्यू जेएस भी है, जावास्क्रिप्ट भी है, jQuery भी है, तो एंगुलर ही क्यों यूज करना है, एंगुलर ही क्यों क्यों फेमस है इतना, व्हाई पीपल आर क्रेजी अबाउट एंगुलर? When I say people means company, why company wants to why company wants to develop everything in Angular only, क्यों, why? तुमको क्या लगता है? बिकॉज सर ये बहुत फास्ट काम करता है। फास्ट काम करता है, ओके, और कुछ? सर एंगुलर SPA पे वर्क करता है, एक सिंगल पेज अच्छा, मैं एप्लीकेशन। गुड गुड, सिंगल पेज एप्लीकेशन काम करता है। चलो मैं इससे पहले थोड़ा सा तुमको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। जब एंगुलर नहीं था तो हम फ्रंट एंड किस में डिजाइन करते थे? तुमने अभी तक किस में सुना है कि हम फ्रंट एंड एप्लीकेशन या वेब जो है अपना डेवलप कर रहे हैं, किस में कर रहे थे? सर PHP। गुड, और?
सर जावा, HTML CSS प्लस जावा। जावा, ओके। जावा में हम तो जेएसपी पेज बना देते हैं, राइट, सर्वलेट बना देते हैं, ओके। और तो जावा बट नहीं, सर जावा सिर्फ जावा नहीं, तो जावा और सर जावा तो लेकिन सर्वर साइड है ना सर, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। तो पीएचपी भी सर्वर साइड ही है। और हम वेब किस में बनाते थे, मैं पूछ रहा हूँ, इससे पहले हम वेब किस में बनाते थे? एक ने बोला पीएचपी, एक ने बोला जावा, ठीक है। जावा में हम जेएसपी सर्वलेट के थ्रू बनाते थे, राइट, वेब, अपना पूरा वेब बनाते थे। और सर .NET। ओके, सो .NET यू सेड, राइट, ओके, .NET। तो अभी पहले जो वेब डेवलपमेंट चलती थी वो .NEट में, जावा में या पीएचपी में चलती थी, एज पर यू, विच इज करेक्ट आल्सो, यू ऑल आर राइट। तो इनमें वेब डेवलपमेंट का जो जो ड्रॉबैक था, वो क्या ड्रॉबैक था तुम्हारे हिसाब से? तुम्हें क्या लगता है क्या ड्रॉबैक है? टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग और कुछ? हैवी डाटा यूज होता है पहले टाइम में। हैवी डेटा मतलब? मतलब सर पहले जो था कि डाटा, अब तो सर डाटा मतलब ज़्यादा मिलने लगा। पहले के टाइम पे डाटा इतना नहीं मिला था, इंटरनेट वगैरह, तो वो कॉस्टली पड़ता था सर। नहीं, और कुछ? सर सिक्योरिटी पर्पस। नहीं, सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी थी, इनफैक्ट सारी पेमेंट एप्लीकेशन तो जावा में होती थी। और कुछ? अभी हमने डिस्कस किया भाई, सर्वर साइड सिंगल पेज टेक्नोलॉजी। क्रिएट। नहीं, सर सिंगल पेज भी लोड .NET में था। टाइम ज़्यादा होता होगा क्योंकि बिकॉज ऑल आर सर्वर साइड लैंग्वेजेस, तो हमारा जो ब्राउजर है वो अंडरस्टैंड नहीं सबसे करता। बड़ा एग्जैक्टली सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था? सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि जो हमारी what do you call it? जो हमारी सर्वर से टेक्नोलॉजीज थी, जैसे मैंने पहले बताया, कि इनके साथ ड्रॉबैक क्या था कि ये टेक्नोलॉजीज बेसिकली सर्वर पे कंपाइल होती थी, राइट, करेक्ट। टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया थी, बट ये सर्वर पे कंपाइल होती थी। एक प्रॉब्लम, क्योंकि सर्वर पे कंपाइल होने का मतलब है हर रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी और फिर रेंडर होके वापस ब्राउजर पे आएगी, तो टर्न अराउंड टाइम बहुत ज्यादा होता था। दूसरा पॉइंट, दे दे आर नॉट गुड इनफ टू लिव अप टू क्लाइंट एक्सपेक्टेशन। मतलब क्लाइंट जो है, अच्छा उसका भी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तुम्हें ये सब चीजें ना समझनी पड़ेंगी और सब चीजें ढंग से सुननी पड़ेंगी, राइट। Don't be impatient, that I should be starting the coding first. कोडिंग तुम सारी जिंदगी कोडिंग करोगे, एक बार कॉन्सेप्ट समझोगे फिर तुम्हें इतनी मारामारी नहीं होगी, राइट। सो यू फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग। सो पहले अगर मैं तुमसे बैंकिंग साइट पूछूं तो कैसी होती थी बैंकिंग साइट पहले? बैंकिंग साइट कैसे होती थी? पहली बात तो साइट्स ही नहीं होती थी पहले तो बैंक की, राइट, जो गवर्नमेंट बैंक्स होते थे। लेकिन अब जब जब बैंक की वेबसाइट आनी शुरू हो गई, तो पहले कैसी होती थी साइट्स? बैंक की कैसी साइट होती थी? इंटरेक्टिव होती थी या डल होती थी? डल होती थी, एक्टिव नहीं होती थी, चल होती बैलेंस नहीं होती बहुत सिंपल सी होती थी, डल होती थी, राइट। ज्यादा फीचर तो नहीं अब होते थे। इसको इंटरेक्टिव क्यों बनाया गया? माय क्वेश्चन। थी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। गुड। और तो पीपल कैन यूज इजीली, तो पीपल आसानी से यूज कर सके। और थोड़ा स्पीक लिटिल लाउडर, आई एम नॉट एबल टू गेट योर पॉइंट। स्पीक लाउडर एंड स्पीक स्लो। तो पीपल कैन यूज इजीली और उनको अंडरस्टैंड करने में भी आसानी है। ठीक है, इंटरेक्टिव एप्लीकेशन बनाने से इजीली वो रीड कर, ठीक है। और ताकि लोग ज्यादा यूज कर सकें नेट बैंक। क्लाइंट, हाँ, अट्रैक्ट करना, फास्ट एप्लीकेशन, राइट। अब जो है एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है?
आपकी एप्लीकेशन में कि आपकी एप्लीकेशन फास्ट है, ज़्यादा इंटरेक्टिव है। पहले की एप्लीकेशन इतनी इंटरेक्टिव नहीं होती थी, फास्ट नहीं होती थी, राइट? बहुत सारे फीचर्स नहीं होते थे, ये भूल गए फीचर्स। पहले फीचर्स लिमिटेड थे, अब फीचर्स बहुत ज़्यादा है। तो हमें हमें ऐसा ही डेवलपमेंट सेंटर चाहिए ना, सॉरी ऐसी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी चाहिए जो फास्ट हो, स्विफ्ट हो, यूजर एक्सपेक्टेशन को मीट कर सके, राइट? इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस बने जिससे, राइट, परफॉर्मेंस अच्छी हो एप्लीकेशन की, फास्ट हो, राइट? यस और नो? यस सर। यस सर। तो जो सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज थी, जैसे PHP हो गया, डॉटनेट हो गया, जावा हो गया, करेक्ट? डॉटनेट जावा के अगेंस्ट तो PHP आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि PHP लाइट वेट है, राइट? डॉटनेट जावा से अच्छा है। लेकिन अब PHP भी एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी था, तो PHP भी टिक नहीं पाया। So point is, long story short is, client always want application which performance is fast, it's quick, right, smooth, should have more features, live up to client expectation. तो वो सब qualities की वजह से या वो सब problems की वजह से .NET and Java were soon out of the market from web development. और उसकी जगह किसने ले ली? Angular ने, फिर React ने, Angular ने, React ने, Vue.js ने। So ये तीन तो मैंने फ्रेमवर्क या लाइब्रेरीज बताई हैं, ये फ्रंट एंड में बेस्ट है, जिनमें से एंगुलर सबसे बेस्ट है। एंगुलर वो सब काम कर सकता है जो तुम्हारा .NET या जावा कर सकता है, बट व्हाट इज द बेस्ट पार्ट? डिफरेंस क्या है फिर एंगुलर में और जावा .NET में? सर ये सर्वर साइड नहीं है। एग्जैक्टली जो काम .NET जावा सर्वर साइड पे करते हैं, वो सारा काम एंगुलर क्लाइंट साइड पे करता है, समझे? तो तुम्हें अगर जावा या एंगुलर जैसा इम्प्रेसिव टेक्नोलॉजी मिल जाए जो सब काम करता है, बट डिफरेंस क्या है? वो क्लाइंट साइड पे करता है, तो ऑब्वियसली चॉइस क्या होगी? एंगुलर, राइट? करेक्ट? यस सर। यस सर। एक और एग्जांपल देता हूँ रियल वर्ल्ड का। तुम्हें ऑर्कुट याद है? ऑर्कुट? यस यस सर। अच्छा, फेसबुक और ऑर्कुट में तुम्हें क्या डिफरेंस नजर आता है? फेसबुक और ऑर्कुट में क्या डिफरेंस नजर आता है? ऐसा ऐसा क्या है फेसबुक में जो ऑर्कुट में नहीं था? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ, लाइक, पोस्ट, शेयर, ये तो फेसबुक में भी था और ऑर्कुट में भी था, तो इसमें क्या है खास फेसबुक में कि अभी तक मार्केट से आउट नहीं हुआ? और बाकी सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स इंक्लूडिंग ऑर्कुट आई हैं और चली गई हैं आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम। हर किसी का एक्सपायरी टाइम होता है, फेसबुक अभी तक भी नहीं आया दूर दूर तक। क्यों? ऐसा क्यों? काम तो वो भी वही कर रहे हैं। सर। आप ऑर्कुट पे भी टाइम पास करते थे, आप फेसबुक पे भी टाइम पास करते हो। सर फेसबुक हर वो विश पूरी करा था जो एक सोशल नेटवर्किंग यूजर को चाहिए था, जैसे वीडियोस अपलोड, फास्ट अपलोडिंग, फास्ट वीडियोस एंड करेक्ट। और क्लाइंट एंगेजमेंट भी रखता है, अगर इफ यू नोटिस क्लाइंट एंगेजमेंट, वो तुम्हें खाली नहीं बैठने देता, वो कुछ ना कुछ तुम्हें थ्रो करता रहता है। ये देखो, ये चेक करो, ये चेक करो, ये चेक करो, राइट? तुम्हें एंगेज रखता है, बोर नहीं होने देता। डिड यू नोटिस? यस सर। यस अग्री और नॉट? एग्री सर। यस सर। जो आपका ये है ऑर्कुट है, वो नहीं कर पाया, या कोई और सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं कर पाई, राइट? वो फेसबुक ने कर दिया। तो इसका मतलब फेसबुक के पास वो टूल या टेक्नोलॉजी तो होगी ना, जिसकी वजह से उसने क्लाइंट्स को एंगेज रखा, अपनी एप्लीकेशन में नए नए फीचर्स लेके आया और हमेशा ग्रो करता रहा, राइट? ऑर्कुट डॉटनेट में थी, ऑर्कुट डॉटनेट में थी, करेक्ट? लेकिन फेसबुक जो था वो रिएक्ट सपोर्टेड था। फेसबुक है PHP में, but it is supported by React.js. So what I'm trying to say is, ये जो हमारे आजकल के ये जो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स है या लाइब्रेरीज है, they are very cool. They give you all those features what server side technologies are giving you, plus on top of it they runs at browser. They run this in browser. They are client side scripting. ठीक है? क्योंकि ये ब्राउजर को क्या भेजते हैं? ओनली HTML एंड जावास्क्रिप्ट, जो ब्राउजर को चाहिए होता है। क्लियर है? अभी गुड? यस सर।
राइट? आगे चलते Yes, हैं। sir. आगे चलते हैं। So apart from this, I guess it's good enough about what is Angular. I guess now you understood what is Angular and why we use Angular. Yes, आपका sir. जो आप जो डॉटनेट में PHP में या जावा में करते हो वो सब आप एंगुलर में कर सकते हो, जैसे सिंगल पेज एप्लीकेशन, सर्विसेज, डायरेक्टिव्स, कंपोनेंट प्रोग्रामिंग, राइट? ऑब्वियसली HTML CSS तो है ही है, राइट? पाइप्स, sir. कस्टम फिल्ट्रेशन, जो आपकी कस्टम फंक्शनैलिटी है, जो आपकी इनबिल्ट फंक्शनैलिटी है, ये सब कुछ जो डॉटनेट जावा में होती है वो सब आप एंगुलर में कर सकते हो। एंड द बिगेस्ट एडवांटेज इज क्लाइंट साइड पर। Okay, that is why we should choose, Angular. Angular has a great support with third party libraries. Suppose आप Angular में charts नहीं बना पा रहे हो, let's say Angular में आप charts नहीं बना पा रहे हो, so you don't need to worry about it. You can connect with chart.js और HiChart और D3 chart, मतलब different libraries के साथ Angular का tie up है, मतलब Angular libraries available है, आप उनको Angular में hook कर सकते हो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को, और चार्ट्स, स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स, ये सब आप बना सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? हर तरह की फंक्शनैलिटी के लिए जो एंगुलर में नहीं है उसके लिए लाइब्रेरी मार्केट में अवेलेबल है जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है? अच्छा, इसके बाद ये ओपन सोर्स है, मतलब ओपन सोर्स मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट नीड टू पे फॉर इट, इट्स एन ओपन सोर्स, यू डोंट नीड टू पे फॉर इट। यू अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. Understood. Yes, sir. ओपन सोर्स मतलब फ्री मतलब नो लाइसेंस रिक्वायर्ड। इवन हम लोग मिलके एंगुलर की ही फ्रेमवर्क को एडिट करके अपने नाम से सेल कर सकते हैं। गेटिंग पॉइंट? हम लोग Yes. एंगुलर के ही प्रोजेक्ट को, सॉरी एंगुलर की ही लाइब्रेरी को ट्वीक करके मिल सके ना। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग, व्हाट वाज द लास्ट लाइन, कि हाँ, हम एंगुलर के फ्रेमवर्क को चेंज करके करेक्ट अपने नाम से मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट यू कॉल ओपन सोर्स। मतलब एक बार ओपन सोर्स मतलब एक बार आपका कोड एज एन ओपन सोर्स मार्केट में आ गया, फिर आपका कोई क्लेम नहीं है उसके ऊपर, यू डोंट हैव एनी क्लेम ऑन इट। गेटिंग माय पॉइंट? टीम, यू अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके, ओके, आई गेस ओके,
Okay, what else we should do? I mean, that's it. That is good enough for what is Angular and why is Angular. This is good enough information. Okay, okay. So हम अब क्या करें? What next? What next? What next? How is Angular? Okay. So मैं how is Angular में तुमको दो तीन चीजें बताता हूँ कि कैसे Angular स्टार्ट करना है. करेक्ट. तो Angular स्टार्ट करने के लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा. Angular CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा. Angular फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना पड़ेगा. Now the question is. Now the question is. The main question is कि Angular इंस्टॉल हुआ कैसे. ये एक ओपन सोर्स ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है. करेक्ट. ओपन सोर्स है. जितने भी ओपन सोर्स होते हैं, काइंडली गो ऑन म्यूट प्लीज. जितने भी ओपन सोर्स होते हैं, जितने भी ओपन सोर्स फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी होती हैं, उनको हम नोड के थ्रू इंस्टॉल करते हैं. नोड के थ्रू, नोड जेएस के थ्रू. गेटिंग माय पॉइंट. नोड हमारा सर्वर के साथ साथ, नोड हमारा सर्वर के साथ साथ क्या है? एक पैकेज मैनेजर भी है. पैकेज मैनेजर मतलब जो हमारे लिए पैकेजेस को डाउनलोड करता है. बात समझ में आई? फॉर एग्जांपल, नोड मेरे लिए एंगुलर पैकेज को या एंगुलर लाइब्रेरी को या एंगुलर फ्रेमवर्क को, करेक्ट, जेक्वेरी को, बूटस्ट्रैप को, जो भी तुम बोलो, जो भी ओपन सोर्स है, हर तरह के ओपन सोर्स पैकेज, लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क को नोड जो है वो इंस्टॉल करने में हेल्प करता है. राइट. तो हमें इसके लिए नोड जेएस चाहिए अपने सिस्टम में. यू गो टू nodejs.org. नाउ लेट मी जस्ट टेल यू द स्टेप्स फॉर इट. सो गो टू nodejs.org और यहाँ से जो रिकमेंडेड वर्जन है वो डाउनलोड कर लो और फिर इंस्टॉल कर लो अपने सिस्टम पे. ये काम अभी करो मेरे सामने. आर यू लॉग्ड इन थ्रू मोबाइल और लैपटॉप? लैपटॉप. But I have installed Node.js. So laptop. ओके. सो nodejs.org पे जाओ और nodejs का रिकमेंडेड वर्जन डाउनलोड करो. उसको डाउनलोड होने के बाद डबल क्लिक करके इंस्टॉल करो और फिर इंस्टॉल करके अपने सिस्टम पे. नाउ देन यू नो सेंड मी अ मैसेज कि हो गया है. जल्दी. फिर हम एंगुलर इंस्टॉल करेंगे. हेलो. Yes, sir. node.js पे जाओ, डाउनलोड करो. Give me just 2 minutes, okay? Just 2 minutes. Till that time, you download the node. Okay? Download the node, install the node. फिर हम एंगुलर इंस्टॉल करेंगे लाइव. Okay, sir.
हेलो टीम, इज योर नोड इंस्टॉल्ड? Yes, sir. हेलो, सबका नोड इंस्टॉल हो गया? यस सर। Okay. Now, Yes. is it installed to all of you? Is it installed in all of your system? Yes, sir. Yes. Good. So now when you press सर Windows, मेरा नहीं हुआ सर। Windows, तो क्या इशू आ गया? अभी चल रहा है या कोई इशू है? मेरा इंस्टॉल हाँ, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब नोड इंस्टॉल हो जाए, करेक्ट, देन you need to type in start start menu, type node. So अगर आपको Node.js का ये दिख रहा है कमांड प्रॉम्प्ट, ये not this one, this guy, Node.js, करेक्ट, मतलब इंस्टॉल्ड है। गॉट माय पॉइंट? मतलब नोड इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, अब आते हैं एंगुलर पे। अब एंगुलर इंस्टॉल कर सकते हैं हम। तो angular.io की साइट पर जाके, इफ यू, वैसे तो एक कमांड है, यू कैन लर्न इट, बट स्टिल इफ यू वांट टू फाइंड इट कि कैसे हम एंगुलर इंस्टॉल करें, सो यू गो टू angular.io, गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड में, गेटिंग स्टार्टेड में ही नहीं, गेटिंग स्टार्टेड को एक्सपैंड करो, इसमें सेटअप करके क्लिक करो। सेटअप पे जब क्लिक करोगे, सो यू विल गेट द कमांड, व्हेन यू कम डाउन यू विल गेट द कमांड। ठीक है, so what you need to do, how you will install it, how you will install Angular. Open command prompt, cmd prompt. Can you all open the command prompt? Yes, sir. Okay. Now after okay, now write this, paste this command, npm install -g @angular-cli. अब एक चीज का मतलब समझो। npm stand for node package manager, so that is why node was important. You understood my point? That is why node was important. Okay, that is why node was important, right? Because node is the one through which we will be installing the Angular. So npm node package manager install, मतलब install करो। install क्या करो? @angular-cli, मतलब Angular framework, जो CLI फ्रेमवर्क है, कैरेक्टर लाइन इंटरफेस। कैरेक्टर लाइन इंटरफेस मतलब कुछ भी GUI नहीं है, कुछ भी नेक्स्ट, कुछ भी क्लिक इवेंट पर नहीं है, GUI बेस नहीं है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, CUI है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, CLI है। मतलब आपको कमांड लाइन पे ही आप जो है कोड करोगे और ये सब होगा, करेक्ट। तो आपने एंगुलर CLI फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है। वी टोल्ड नोड, हे नोड npm नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल एंगुलर CLI फ्रेमवर्क। कैसे? लोकली और ग्लोबली। वी पुट अ स्विच कॉल्ड -g मतलब ग्लोबली इंस्टॉल कर दो। मुझे हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग बार इंस्टॉल नहीं करना पड़े, ग्लोबली इंस्टॉल कर दो। एंड व्हेन यू प्रेस एंटर, इट विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग एंगुलर फ्रेमवर्क। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसे उसको वो अपडेट करके लेटेस्ट कर देगा। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? Yes, डिड यू sir. गाइस स्टार्ट? डिड यू गाइस स्टार्ट? शुरू कर दिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सी, उसने मेरा जो है, मेरे पास एंगुलर का पहले ओल्डर वर्जन था, आई गेस 10 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस सिस्टम पर। उसने उसे 12 कर दिया, लेटेस्ट 12.2 इनफैक्ट। ठीक है टीम, कैसा नो? Yes, sir. यस पहले होने दो, तुम्हारा Yes, sir. तुम्हारा इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ अभी? No, sir. अभी कर रहे हैं। सब चल रहा है। ठीक है, एक 2 मिनट्स का पॉज लेते हैं, तब तक सबका हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द कमांड व्हाट वी फायर्ड।
सब कर लो फिर आगे बात करते हैं. Let's take a pause of 2 minutes. In fact I'm taking pause of 2 minutes. Okay. तब तक आप लोग इंस्टॉल कर लो, फिर हम देखेंगे एंगुलर में न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट इन एंगुलर. दैट इज व्हाट वी विल डू टिल टुडे. नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट द डेवलपमेंट. ओके.
Okay, so team, is it done? Hello. सर चेक कैसे Yes, करेंगे? sir. Hello. Yes, sir. हो गया? अच्छा, चेक कैसे करेंगे? गुड। तो हम डालते हैं एंगुलर माइनस बी, नो, एंगुलर वर्शन minus version, no. Okay, sorry, my mistake. CLS ng minus v चेक करते हैं पहले। ये तो कमांड दे देगा। ng माइनस वर्शन देते हैं। यस, तो ये क्या बता रहा है हमारे को? तो एंगुलर ng माइनस माइनस वर्शन लिखोगे तो तुम्हें पूरा वर्शन बता देगा एंगुलर का कि ये 12.2 वर्शन है और तुम्हारे इसमें नोड जो है वो 14 वर्शन का इंस्टॉल्ड है। पैकेज मैनेजर जो npm है वो 6.14 है, राइट। ओएस तुम्हारा Win3264 है, पूरी एंगुलर इन्फॉर्मेशन दे देगा। पैकेजेस कौन कौन से तुम्हारे ग्लोबली इंस्टॉल्ड है वो सब बता देगा, राइट। इट्स ng माइनस माइनस वर्शन। क्लियर है? ng Yes, माइनस yes, sir. माइनस वर्शन। और कोई इंफॉर्मेशन? Sir, All good? I'm getting a error while I'm installing it, sir. NPM I have installed, but with the Angular I'm getting some issues. It is Can not you getting. share your screen? Yes, sir. क्या कमांड फाइल के लिखो? अभी तक क्या इंस्टॉल किया? सर npm इंस्टॉल किया था पहले, जो आपने वेबसाइट हम्म, बताया वहां से, और उसके बाद मैंने हम्म, ये कमांड रन किया, ठीक है। तो ये बोल रहा है द ऑपरेशन वाज रिजेक्टेड बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये इसमें था कि you can change the root where you are, either you can be administrator, so I have changed it. So मैं चला गया रूट फोल्डर में, वहां से जाके मैंने फिर से इंस्टॉल किया नहीं, अगेन। ऐसा कुछ नहीं करना। तुम्हारा रुक जाओ जरा, अब मतलब तुम्हारा एंगुलर भी इंस्टॉल नहीं हुआ है, करेक्ट? नहीं, नोड npm इंस्टॉल हो गया है। यस सर, मैं नोड का वो चेक किया था, ये node /v। तुम्हारा सिस्टम विंडोज है क्या या नहीं? मैक है सर। अच्छा, मैक है। मैक है तो तुम एडमिन परमिशन लेके करो, sudo लगा के कमांड रन करो सारी, ओके sudo। तब बात बनेगी। Anyone else who's having any issue? No, sir. सर मेरा सर एंगुलर अभी कहाँ ये हुआ सर इंस्टॉल हुआ? एंगुलर क्या नहीं हुआ? हेलो, एंगुलर सर, एंगुलर जो बोल रहे सर आप। सर बोल रहे सर एंगुलर के बारे में सर। स्क्रीन शेयर करो नूर। नूर स्क्रीन शेयर करो। ओके, बाकी सबका हो गया। नया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। सर मेरा नेटवर्क के कारण मैं डिस्टर्ब हुआ सर, एंगुलर बता रहा हूँ डिस्कस इंस्टॉल हो गया सर, बट मैंने जो आपने Node.js बताया मैंने इंस्टॉल कर दिया है। पीछे बहुत बैकग्राउंड नॉइज है, आई एम नॉट एबल टू हियर एनीथिंग रोशन। वेट
सर एंगुलर एक बार फिर से रिपीट कर दो, कैसे इंस्टॉल करना है। मैंने Node.js आपने जो बताया था वेबसाइट से मैंने कर लिया है इंस्टॉल। आवाज क्लियर आ रही है सर? हाँ, मेरा स्क्रीन विजिबल है। सर अभी तो कुछ नहीं, आपने नूर को कॉल किया तो वहीं से दिखाई देगा। So this is the command. This is the सर ये command to install. Node.js में देना है सर कमांड ये जो है? नहीं नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट में विंडोज पे कमांड स्टार्ट प्रॉम्प्ट है, में? विंडोज पे जाओ, CMD कमांड हाँ प्रॉम्प्ट हाँ, खोलो और वहाँ ये कमांड लिख दो, तो इंस्टॉल करेगा। जल्दी करो, एक मिनट। मुझे भी 1 मिनट दो, जल्दी करो, फिर मुझे नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कराना है। कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं? क्या लिखना है सर? npm? सर हेलो हेलो यस, सर बोले सर CLI लिखने वास्ते इंटर मरना है सर। क्या करना है? सर सर एंगुलर लिखना, एंगुलर स्लैश CLI, उसे इंटर 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 मरना है। हाँ, ओके सर। सर ये लिख कर npm @6.144 ccs है, वो लिख कर इंस्टॉल हो गया सर इसका मतलब? तुम पहले मुझे ये बताओ, तुमने ये कमांड रन करी या नहीं करी? हाँ कर दिए सर, जो आपने बताया वो मैंने कर दिया। ओके, तो जब ये हो जाए तो उसके बाद ng स्पेस माइनस माइनस वर्जन टाइप करो, तो तुम्हें बताएगा एंगुलर वर्जन क्या है तुम्हारा। ये ठीक है, चेक करो। सर मेरा सर इंटर मरना नहीं आया सर। क्या एरर आ रहा है तुम्हारे को नूर? मतलब इंटर मरने कुछ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा है तुम्हारा? स्लो होगा, प्रोसेस आएगा, स्टार्ट होगा अभी। अगर नहीं होगा तो सिस्टम में भी स्लो होगा तुम्हारा। तो सर मेरे में लिख के आ रहा है ng माइनस वर्जन मैंने जब किया टाइप तो इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम ऑन बैच फाइल। तुमने इसका मतलब एंगुलर इंस्टॉल नहीं किया ठीक से। मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखाओगे क्या? यस सर दिखा रहा है, एक मिनट। नॉट एबल टू सी योर स्क्रीन। यार अपना स्क्रीन शेयर करो, मैं तभी तुम्हें बता सकता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही होगी तुम्हारे को। बाकी सबने एंगल इंस्टॉल कर दिया क्या? यस सर। यस सर। गुड। ठीक है, मैं आगे एक बार मेरा नहीं हो रहा सर। नूर तुम्हारा मैं सेपरेटली कॉल लेता हूँ अब। ना तुम स्क्रीन शेयर कर रहे हो, राइट? हाउ आई एम एबल टू गेट टू नो क्या लाइक है सर? एग्जैक्टली व्हाट इशू यू आर फेसिंग? नहीं हो रहा ना तुम्हारा स्क्रीन शेयर, नहीं हो रहा। रोशन को बोला था, उसका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। आई आस्क यू, यू आर नॉट शेयरिंग योर स्क्रीन, तो मैं कैसे हैंडल करूंगा तुम बताओ? मैं एक काम करता हूँ, मैं तुमको सेपरेटली असेस करता हूँ।
अभी हो गया सर स्क्रीन से। हेलो। हाँ हाँ, तो ये तुम्हारा चल तो रहा है अभी, इंस्टॉलेशन चल रही है तुम्हारी। नूर तुम्हारा नेट बहुत स्लो है, इंस्टॉलेशन चल रही है अभी तुम्हारी। सर आप जो बोले सर माइनस माइनस वर्जन वर्जन टाइप करने के बाद तो आ जाएगा। अरे तो पहले इंस्टॉल तो होने दो पहले एंगुलर को, वो भी इंस्टॉल ही नहीं है तो ठीक कैसे है आएगा सर। माइनस में वर्जन लेके, कहाँ लिखोगे वर्जन? तुम कुछ टाइप भी करोगे तो कुछ टाइप नहीं होगा, बिकॉज इट इज इंस्टॉलिंग, इट इज स्टिल इंस्टॉलिंग। उसने अभी तुम्हें कर्सर बैक नहीं दिया है, इट इज स्टिल इंस्टॉलिंग। वैसा वैसा टाइप कर कुछ नहीं हो रहा। हाँ होगा भी नहीं कुछ, और करो भी मत टाइप उसे, पहले उसे होल्ड दो, इंस्टॉल होने दो पहले एंगुलर को। लेट एंगुलर इंस्टॉल, देन यू विल चेक कि वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। तुम अभी इंस्टॉल होने दोगे तो चेक करोगे ना कि इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। ओके सर ओके। So I am coming back to my command prompt, and let's see how we can create a new project. Okay. Yes, sir. हो गया सबका, आगे चले। यस सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. One second. Huh? Okay. So अब हमारा Angular जो है इंस्टॉल हो गया, our Angular CLI is installed. Now we need to create a new project. So where we are creating a new project, we have to creating a new project in Angular. Okay. So which location, अगर मैं यहाँ प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो वो लोकेशन क्या होगी, user/Lenovo. So better पहले मैं एक अपनी रिपोजिटरी बनाऊं या अपना एक फोल्डर बनाऊं जहां पर मैं सारे प्रोजेक्ट्स, मिनी प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा। मिनी प्रोजेक्ट मतलब ये सैंपल असाइनमेंट जो बनाऊंगा। सो cd प्रोजेक्ट नहीं, नो नो, या प्रोजेक्ट्स, we have sample projects, whatever. Training, yes, training inside training folder. I'm going to create a new project in Angular. ng new. ng stands for Angular. ng stands for Angular. Okay, don't forget, ng stands for Angular. I say Angular ng new means new Angular project. Create new Angular project. We are basically giving direction to Angular that hey ng, create a new project by name my basic app. Let's say ये मेरे project का नाम है my basic app. Enter. So जैसे ही मैं enter करूंगा, so वो एक नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए मेरे से क्वेश्चन आंसर्स पूछेगा, जैसे वुड यू लाइक टू ऐड अ एंगुलर राउटिंग। तुम्हें पता है राउटिंग क्या होती है? नो राइट, छोड़ दो, बोलो नो। फिर वो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी स्टाइल शीट लोगे, CSS, SCSS, SASS और लेस। तुम्हें लास्ट की तीन पता है? डू यू नो SCSS, SCSS और लेस? नो सर। देन कीप CSS No, ओनली। एंटर। अब उसने सारी फाइल्स बना दी, करेक्ट? उसने सारी की सारी फाइल्स बना दी। अगर तुम नोट करो, एंगुलर डॉट जेसन, पैकेट डॉट जेसन, रीडमी डॉट एमडी, टीएस कॉन्फिग, एडिटर कॉन्फिग, ये सारी की सारी फाइल्स उसने बना दी। नीचे से देखोगे तो कंपोनेंट्स बनाए उसने।
सोर्स फोल्डर बनाया, सोर्स फोल्डर के अंदर ऐप फोल्डर बनाया, ऐप फोल्डर के अंदर component.css डाल दी, .ts डाल दिया, .spec फाइल डाल दी, .html डाल दिया, ऐसे करके सारी उसने फाइल्स बना दी। और अभी वो क्या कर रहा है, अभी वो पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा है, जो इंपॉर्टेंट पैकेजेस एप्लीकेशन को चाहिए होते हैं चलने के लिए। ये बेसिकली एक बॉयलरप्लेट बना रहा है। बॉयलरप्लेट मतलब, बॉयलरप्लेट किसको बोलते हैं? इनिशियल सैंपल प्रोजेक्ट। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? इनिशियल बेस प्रोजेक्ट, दैट इज कॉल्ड बॉयलरप्लेट। तो इनिशियल बेस प्रोजेक्ट बना के दे रहा है जिसमें एक मॉड्यूल, एक कंपोनेंट तुम्हारे पास होगा। क्लियर हुआ या नहीं? जैसे तुम कोई नई चीज लेने जाते हो तो वो एक बेसिक सेटअप बना के देते हैं ना तुम्हारे को, समझो, डिफॉल्ट सेटिंग के साथ। तो वो डिफॉल्ट सेटिंग के साथ वो बेस प्रोजेक्ट, बेसिक प्रोजेक्ट, बिल्कुल बेसिक, बेयर मिनिमम ऐसे क्रिएट करके तुम्हारे को दे रहा है। तो उसके लिए उसने फाइल्स तो बना दी। नाउ इफ यू सी द लास्ट लाइन, व्हाट इट इज सेइंग, इंस्टॉलिंग पैकेजेस, जो रिक्वायर्ड ओपन सोर्स पैकेजेस, लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क है, वो इंस्टॉल कर रहा है। जैसे बूटस्ट्रैप या jQuery या जैसे एग्जांपल। तो ये क्या है? ये पैकेजेस हैं, लाइब्रेरीज हैं। तो ये जो रिक्वायर्ड है उनको डाउनलोड कर रहा है, इंस्टॉल